is Radhika Gaur with the session number 11 of your chapter Electricity, and in this session we are here going to discuss about question answers of SAT 2. That is, in this session we will discuss about the exercise questions. Clear? So let's start with the question number 1. A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. कोई भी piece of wire है जिसका resistance R है, उसे हमने 5 equal parts में cut कर दिया. These are then connected in parallel. फिर उन्हें हमने parallel में connect कर दिया. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R upon R dash is, जब भी आप find out करेंगे जो ratio है resistance का, that will be is equals to 25. Clear? You can find out it obviously by using the formula of the resistance. The next question is, which of the following terms does not represent electrical power in the circuit? इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता? तो ऑब्वियसली I स्क्वायर आर P इज इक्वल टू I स्क्वायर आर होता है, P इज इक्वल टू VI भी होता है और P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R भी होता है. तो P इज इक्वल टू I R स्क्वायर कोई टर्म नहीं होता. दैट इज आंसर B इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. Clear? When it is operated on 110 volt, the power consumed will be, you have to find the power consumed. आप directly power का formula use करके इसे find out कर सकते हैं, and your correct answer will be answer D. That is, you will get the answer 25 watt. Clear? Your next question is, two conducting wires of same material and of equal length and equal diameters are first connected in series, then in parallel in a circuit across same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be, दो कोई भी conducting wire है, same material के हैं, equal length के हैं, equal diameter, उन्हें पहले series में connect किया गया, then उन्हें parallel में connect किया गया. Clear? Another thing, उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी हमने सेम रखा है. आपको जो हीट प्रोड्यूस होगी सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उनका रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? सो यू विल गेट द रेशियो 1:4. क्लियर? तो आप इजीली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रख के यहाँ पे, दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट किएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, एंड दैट विल बी इज इक्वल टू 1:4. दैट इज योर करेक्ट आंसर विल बी आंसर C. The next question is, how is a voltmeter connected in a circuit to measure the potential difference between two points? कैसे हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने को? तो ऑब्वियसली voltmeter is always connected in parallel in circuit to measure potential difference between two points. दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो वोल्टमीटर है उसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर्किट में. इज दैट क्लियर टू यू? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm. एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर 0.5 mm है एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर. उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर. नाउ व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 100 ओम? How much does the resistance change if the diameter is double? आपको बताना है कि जो वायर है उसकी लेंथ क्या होगी उसके रेजिस्टेंस को 100 ओम बनाने के लिए, and how much does the resistance change if the diameter is doubled? यदि डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस है वो कितना चेंज होगा? अभी R इज इक्वल टू हमें गिवन है D/2, दैट इज 0.5 अपॉन 2, दैट विल बी इज इक्वल टू 0.25 mm. R इज इक्वल टू हमें गिवन है 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 m. So rho is equals to हो जाएगा 1.6 into 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर एंड R is equals to हो जाएगा 10 ओम. We know R is equals to होता है रो L अपॉन A, that is R is equals to हो जाएगा रो L अपॉन पाई R स्क्वायर. So L is equals to हो जाएगा R पाई स्क्वायर अपॉन रो. अभी हम सबकी वैल्यू रख देंगे तो L is equals to आ जाएगा 122.66 मीटर. So if the diameter is doubled, then the resistance becomes 1/4 of its original value. The next question is, when a 12 volt battery is connected across one unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. आपको V given है, that is 12 volt, current given है, that is 2.5 milliampere.
जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एम्पियर में, दैट विल बी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। हमें R फाइंड आउट करना है, R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, सो R विल बी इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 की पावर 3 ओम। क्लियर? Your next question is, a battery of 9 volt is connected in series with resistor of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm and 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? तो अभी हमें क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें 5 रेजिस्टर दिए हुए हैं और 9 वोल्ट की बैटरी दी गई है। आपको ये बताना है कि जो 12 ओम रेजिस्टर है उसके थ्रू कितना करंट फ्लो होगा। उसके थ्रू करंट निकालने के लिए हमें पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, दैट इज 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, दैट विल बी इज इक्वल टू 13.4 ओम। So the current through 12 ohm resistor will be is equal to V upon R, तो ये हो जाएगा 9 volt upon 13.4 ohm, so that will be is equal to 0.67 ampere. Your next question is, how many 176 ohm resistor in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? हमें V given है 220 volt, I given है 5 ampere. Resistance of the wire, that is R given है हमें V upon I. So R is equals to हो गया 220 upon 5, that will be is equals to 44 ohm. So the net resistance 44 ohm is less than the individual resistance 176 ohm. So individual resistance are to be connected in the parallel order. Clear? So R equivalent is equals to हो जाएगा 1 upon R plus 1 upon R plus 1 upon R, that will be is equals to 1 upon N upon R, and that will be is equals to R upon N. So 44 ohm is equal to हो जाएगा 176 ohm upon N, N is equal to हो जाएगा 176 upon 44. So 4 resistors are required to carry 5 ampere on a 220 volt line. The next question is, several electric valves designed to be used on 220 volt electric supply. काफी सारे इलेक्ट्रिक वाल्व्स हैं जिन्हें हमने डिजाइन किया है 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई पे यूज करने के लिए। आर रेटेड 10 वॉट, उनका जो रेट है वो 10 वॉट है, दैट इज पार हमें गिवन है 10 वॉट। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। अभी देखो V इज इक्वल टू हमें गिवन है 220 वोल्ट, P इज इक्वल टू गिवन है हमें 100 वॉट एंड I इज इक्वल टू हमें गिवन है 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस ऑफ द वर्क दैट इज R डैश इज इक्वल टू V2 अपॉन P हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P, सॉरी, दैट विल बी इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन 10, सो R डैश हो जाएगा 4840 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज R इज इक्वल टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस दैट इज R डैश अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, सो R इज इक्वल टू हो जाएगा 4840 अपॉन N ओम, सो V इज इक्वल टू हो जाएगा IR, सो 220 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 4840 अपॉन N, तो N इज इक्वल टू यहाँ से हो गया 5 इंटू 4840 अपॉन 220। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100 वोल्ट्स। तो कितने इलेक्ट्रिक वोल्ट्स नीडेड होंगे? 100 वोल्ट्स। The next question is, a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 224 resistance. How many be used separately in series or in parallel? What are the currents in this case? हमें V is equal to given है 220 volt, RA is equal to RB है and that is 24 ohm. Clear? So current in plates when used separately. तो separately use करेंगे तो I is equal to हो जाएगा V upon RA, that will be is equal to V upon RB and that will be is equal to 220 upon 24 and that will be is equal to 9.16 ampere. Now when the current is plates when connected in series, अब जो current plates हैं उन्हें हम सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, तो R is equal to हो जाएगा RA plus RB, so 24 plus 24 will be is equal to 48 ohm, तो I is equal to हो जाएगा V upon R and that will be is equal to 220 upon 48, so current will be is equal to 4.58 ampere. Next, the current in plates when connected in parallel, अब जो current है plates में उन्हें हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो R is equal to हो जाएगा RA RB upon RA plus RB, so that will be is equal to 24 into 24 upon 48,
सो R इज इक्वल टू हो जाएगा 12 ओम. सो द करंट फ्लोइंग दैट इज I इज इक्वल टू V अपॉन R एंड दैट विल बी इज इक्वल टू 220 अपॉन 12. सो I इज इक्वल टू हो जाएगा 18.32 एम्पियर. क्लियर? The next question is two lamps, one rated 100 watt and 220 volt. Clear? And the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to the electric main supply. What current is drawn from the line? The supply voltage is 220 volt. आपको V गिवन है 220, P1 गिवन है आपको 100 watt, P2 गिवन है आपको 60 watt. तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 अपॉन V, दैट विल बी इज इक्वल टू 100 अपॉन 220, दैट विल बी इज इक्वल टू 0.45 एम्पियर. I2 हमें गिवन है P2 अपॉन V, दैट विल बी इज इक्वल टू 60 अपॉन 220 एंड दैट विल बी इज इक्वल टू 0.27 एम्पियर. टोटल करंट दैट इज I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2. सो I इज इक्वल टू हो जाएगा 0.45 प्लस 0.27, सो I इज इक्वल टू हो जाएगा 0.72 एम्पियर. क्लियर? Your next question is, which uses more energy, a 250 watt TV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minutes? जो इन दोनों में से कौन ज्यादा एनर्जी यूज करेगा? ऑब्वियसली P1 हमने ले लिया 250 वाट, P2 ले लिया हमने 1200 वाट. क्लियर? T1 हमारे पास 1 आवर है, दैट इज 3600 सेकेंड. T2 हमारे पास 10 मिनट है, दैट इज आई मीन टू से 600 सेकेंड. Q1 इज इक्वल टू हो गया P1 T1 दैट इज 250 इंटू 3600, so that will be is equals to around 900 kilojoule. Clear? Q2 is equals to P2 into T2 हो गया, that will be is equals to 1200 into 600 and that will be is equals to 720 kilojoule. Thus TV set uses more energy. जो TV set है वो ज्यादा एनर्जी यूज करेगा. And next question is, an electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service mains to R. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. That is आपको R given है 8 ohm, I given है 15 ampere, T given है 2 R that is 70 to 100 second. Heat developed that is H is equals to हो जाएगा I square RT that will be equals to 15 into 15 into 8 into 70 to 100 joule. So the rate of heat developed that is P is equals to H upon T हो जाएगा, that will be is equals to 15 into 15 into 8 into 70 to 100 upon 70 to 100. 70 to 100 से 70 to 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पावर इज इक्वल टू आ जाएगा 1800 वाट और वी कैन से 1800 जूल पर सेकेंड. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why is tungsten used almost exclusively for filament of electric lamps? इलेक्ट्रिक लैम्प्स में हम टंगस्टन का यूज ही क्यों करते हैं? एक्चुअली टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. जो टंगस्टन है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो इजीली मेल्ट नहीं होता हाई टेम्परेचर पे. इट डज नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, thereby it is used almost exclusively for filaments of electric lamp. The next question is, why are the conductors of electric heating devices such as bread toaster and electric irons made of an alloy rather than of pure metal? क्यों जो कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस के वो एलॉय के बने होते हैं ना कि प्योर मेटल के? एक्चुअली इट इज बिकॉज एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर अनलाइक मेटल्स. फर्स्ट तो ये जो एलॉय है वो ऑक्सीडाइज नहीं होते इजीली मेटल्स की तरह. सेकेंडली जो एलॉय है उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हायर होता है, उनकी रेजिस्टिविटी भी हायर होती है. दैट इज द रीजन एलॉय आर यूज्ड टू मेकिंग द conductors, or we can say making the conductors of electric heating devices. Is that clear to you? Your next question is, why is the series arrangement not used for domestic circuit? Domestic circuits के लिए हम series arrangement का use क्यों नहीं करते? तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ. सिंपली जो सीरीज अरेंजमेंट होता है उसमें क्या रहता है, सब एंड टू एंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहते हैं. दैट इज यदि एक रेजिस्टेंस दैट इज एक यदि सर्किट ब्रेक ऑफ हो गया, एक सर्किट शॉर्ट सर्किट हो गया या एक सर्किट डैमेज हो गया तो हर एक सर्किट डैमेज हो जाएगा. इसीलिए हम सीरीज अरेंजमेंट यूज ना करके पैरेलल अरेंजमेंट का यूज करते हैं डोमेस्टिक सर्किट्स में. क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? रेजिस्टेंस ऑफ वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कैसे वेरी करता है? ऑब्वियसली resistance is inversely proportional to the area of cross section of the wire. वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उसके रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. दैट इज यदि रेजिस्टेंस को हम डिक्रीज करेंगे
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा। यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए कॉपर एंड एल्यूमिनियम के वायर को हम क्यों एम्प्लॉय करते हैं? एक्चुअली बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। जो एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लो होती है, एंड सो दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट विदाउट हैवी हीट लॉसेस। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं वो विदाउट हैवी हीट लॉसेस होता है। दैट इज व्हाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने जो एक्सरसाइज है इलेक्ट्रिसिटी की वो हमने सॉल्व आउट कर ली, और ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं, तो वो क्वेश्चन ज्यादातर वही हैं जो क्वेश्चंस या तो सिमिलर हैं दूसरे क्वेश्चंस के जो मैंने सॉल्व आउट कराए हैं, या फिर जो आपको टेक्स्ट में मिल जाएंगे, दैट इज जो मैंने सेशंस कराए हैं वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो ऑब्वियसली इट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। In next chapter, we are going to discuss more about our textbook. Till then, obviously, good luck for you.